جشن کی میزبانی کا فرض ادا کیا۔ ناظم محفل آپ تمام لوگوں نے بہت اچھے انداز سے اپنے اپنے فریضے کو ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ذکر اہل بیت کسی حالت کا، زمانے کا، کسی بھی صورت کا محتاج نہیں ہے، قید و بند میں نہیں رہتا ہے۔ ذکر اہل بیت زمانہ کوئی بھی ہو، یہ ذکر چلتا رہتا ہے۔ ہم نے کل بھی ذکر اہل بیت کیا، آج بھی کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک یہ ذکر جاری رہے گا۔ ذکر اہل بیت نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رکے گا۔ زمانہ ٹھہر گیا مگر اہل بیت کا ذکر جیسے پہلے جاری تھا ویسے ہی اب بھی جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کا اور دنیا کے ٹھہر جانے کا بہت سا نقصان سامنے آیا ہے اور اس کو فزیکلی امام بارگاہوں اور مساجد سے دوری کے طور پر ہم خود محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان حالات نے دنیا کے سارے عزاداروں کو اور سارے عبادت گزاروں کو ایک اسکرین پہ لا کر کے جوڑ دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہماری قوم نے اٹھایا۔ آج جتنی بڑی تعداد میں محفلیں، مجلسیں، پروگرام پوری دنیا میں منعقد ہو رہے ہیں اور کتنا اس میں اضافہ ہوا ہے، اگر میں آپ کے سامنے ایک جملے میں یہ اس چیز کو بیان کرنا چاہوں اپنے ذاتی تجربے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر، تو یہ کہہ سکتا ہوں جتنا انسان عام حالات میں رمضان میں ایک مولوی یا عالم یا شاعر مشغول اور بزی رہتا ہے، اس کے کئی گنا اور کئی برابر مشغولیات اس ماہ مبارک رمضان میں محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات نے ذکر اہل بیت کو کم نہیں ہونے دیا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اکبر بھائی کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اکبر رضا صاحب نے چندن پٹی سے نوئیڈا تک اور نوئیڈا سے لے کر کے موریشس اور دبئی تک کے ایسے ایسے ہیروں کو اکٹھا کر دیا جس کا عام حالات میں امکان نہ تھا۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شاندار طریقے سے جشن چل رہا ہے۔ میں جشن میں دو موضوعات کو بہت کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ایک جانب ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا اس مناسبت سے نصیحت کے یا تبلیغی عنوان سے کچھ جملے ہونے چاہیے۔ دوسری جانب نزول قرآن ناسخ کی تاریخ ہے، لہٰذا اس کا بھی کچھ انضمام ہونا چاہیے۔ کوشش رہے گی کہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے میزبانوں کی جانب سے، اس سے 5 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، لیکن اگر 5 منٹ بڑھ جاتا ہے تو میں تمام سامعین سے معذرت کا پہلے سے ہوں۔ البتہ میرا ارادہ یہ ہے کہ جو وقت دیا گیا اس سے 5 منٹ قبل اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال الامام الحسن المجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته الى مرضاته فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا۔ ہمارے امام کی تاریخ ولادت کے موقع پر ایک تحفہ، ایک ہدیہ اور ایک عیدی امام کے بہترین قول کی مناسبت سے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے ذیل میں آج کی اس محفل کو، اس جشن کو بھی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خالق کائنات نے ماہ مبارک رمضان کو، دیکھیے ہر انسان کے اندر فطرتاً ایک جذبہ پایا جاتا ہے کمپٹیشن کا، مسابقے کا، مقابلے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، اور اگر یہ مسابقے کا جذبہ کار خیر میں ہو تو یہ برا نہیں بلکہ عمل مستحسن ہے، قدردانی کے لائق عمل ہے۔ ایک ایک لفظ پہ اپنے سارے سامعین اور ناظرین سے خاص توجہ چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اکثریت یا بہت بڑی تعداد اپنے مدین کی ہم ساتھ اور نظر سب کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، مگر ہم سب کے ساتھ مل کر کے جشن مناتے ہیں۔ اور ہمارے امام کی تاریخ ولادت کے موقع پر ایک تحفہ، ایک ہدیہ اور ایک عیدی امام کے بہترین قول کی مناسبت سے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے ذیل میں آج کی اس محفل کو، اس
मगर जो जिस तरीके से आप हमेशा गुफ्तगू सुनते हैं, एक एक लफ्ज हमारा पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे। इमाम हसन, देखिए आप सब के अंदर फितरतन एक मिजाज पाया जाता है, वो क्या है? वो जज्बे मुसाबिका है, मुकाबला आराई, कंपटीशन का जज्बा। बचपने से ये चीज इंसानों में पाई जाती है। इंसान जब उम्र की दहलीज पे और एक ऐसे मकाम पे कदम रखता है कि जब बुढ़ापा हो या जवानी हो, तब भी ये जज्बा इंसान के अंदर पाया जाता है, कभी उभरने लगता है, कभी इसमें इजाफा होने लगता है। अगर ये जज्बे मुसाबिका, जज्बे मुकाबला आराई कार खैर में हो, हुस्न नियत के साथ हो, तो मासूमीन की निगाह में मुस्तहसन अमल होता है। आप देखिए, इस माह मुबारक रमजान को इमाम हसन ने एक मुसाबिके का मरकज करार दिया है, कंपटीशन और मुकाबला आराई का महवर करार दिया है। इमाम हसन फरमाते हैं, खालिक कायनात ने माह रमजान को मुसाबिके के लिए करार दिया है, अपनी मखलूकात के लिए, खल्क के लिए मुसाबिका गाह करार दिया है, महवर मुकाबला आराई करार दिया है, मैदान कंपटीशन करार दिया है। इसमें लोग मुसाबिका करते हैं। मुसाबिका किस चीज के लिए होता है? कंपटीशन किस चीज के लिए होता है? अभी अंकल ने कुरान का तस्करा किया कि मैं इतना कुरान पढ़ चुका हूँ, तो कोई हो सकता है कुछ और कहे, हो सकता है तीसरा कोई और कहे। ये कुरान का मुसाबिका, ये नमाज इमाम हसन फरमाया, ही इंसान कार खैर के लिए मुकाबला आराई करे, मुसाबिका करे, कंपटीशन करे, एक दूसरे से सबकत ले जाने। चुनांचे फरमाया, रमजान को अल्लाह ने अपनी मखलूकात के लिए मुसाबिका आराई के उन्वान से बनाया है। बस इस मुसाबिके में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की मर्जी को हासिल करने की राह पे तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, वो सबकत कर ले जाते हैं। कुछ वो हैं जो कोताही करते हैं, वो खसारे में रहते हैं, वो नुकसान में रहते हैं। आपके जरिए मुनक्किद शुदा ये शानदार जश्न इस बात की दलील है, इस मुसाबिके खैर में आप किसी से पीछे नहीं रहना चाहते हैं, सबके शाना बशाना या सबसे आगे चलना चाहते हैं। और हम इमाम हसन से ये अर्ज करेंगे, मौला आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी सिफारिश कीजिएगा और गवाही दीजिएगा कि आपकी विलायत की तारीख में हमने दोहरी दोहरी इबादत करने के लिए उस तरीके से कदम को आगे बढ़ाया, राह खैर में उस तरीके से मुसाबिका किया है कि हमने ये सोचा कि हम इस कार खैर में दूसरों से पीछे न रहने पाए। अब चूंकि आपने खुद हुक्म फरमाया था, तो इसको खुदनुमाई नहीं बल्कि हुस्न नियत पर मुश्तमिल कार खैर समझ करके अल्लाह की बारगाह में हमारे सिफारिश कीजिएगा, ताकि महशर में हम लोगों से पीछे न रहने पाए, बल्कि लोगों के शाना बशाना मोमिनीन के साथ साथ चलें और पुलिस सराज से अमीरुल मोमिनीन हमें पार कराएं। खातून जन्नत की मर्जी से हम उस जन्नत में दाखिल हो जाएं कि जिस जन्नत के सरदार की विलादत के मौके पर इस जश्न को मुनक़िद कर रहे हैं। कौन सरदार जन्नत? वो सरदार जन्नत, दो सरदार जन्नत नबी ने बताए हैं, उनमें आप जानते हैं आज नबी के बड़े शहजादे की विलादत का मौका है। ये जश्न है, ये जश्न सरदार जन्नत है, ये जश्न वो जन्नत है, वो जश्न है कि जो साक़ी कौसर के बेटे का जश्न है, खातून महशर के बेटे का जश्न है, पैगंबर अकरम के बेटे का जश्न है, बिरादर हसन हुसैन का जश्न है। आज इमाम हसन के सिलसिले से बहुत सी बातें बयान करने का दिल चाह रहा है, मगर अकबर भाई ने उस एक जश्न का तस्करा किया था जिस जश्न में इमाम हसन की जिंदगी के एक अहम तरीन रुख को मैंने पेश किया था। अब वो अंदाज तो नहीं लाया जा सकता है इस ऑनलाइन महफिल में जो फिजिकली और इज्तिमाई महफिल में होता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि इमाम हसन की जिंदगी के उस अहम तरीन रुख को पेश कर दूं जिस रुख का एक हिस्सा मैंने पेश किया था अपने मुखातबीन के सामने। आप में से बहुत से लोग उसमें मौजूद थे। मैं उसी हिस्से को मुख्तसर पेश करते हुए दूसरे हिस्से को पेश करना चाहूंगा। इमाम हसन की जिंदगी के इस अहम रुख के दो हिस्से हैं जिसे सुलह हसनी कहा जाता है। इमाम हसन ने अगरचे जंगें भी लड़ी हैं, फातह जंग सिफ़ीन, फातह जंग जमल इमाम हसन की जात है। खून जो कासिम इब्न हसन की रगों में दौड़ रहा था, वो उसी हसन का खून दौड़ रहा था जिसने मैदान जमल में मोहम्मद हनफिया जैसे सुरमा
से जो काम न हो सका वो करके दिखाया, और तारीख ने फातह जमल के उन्वान से इमाम हसन को पेश किया है। जंग जमल जीती गई है हसन की शजात पर, और उसी हसन का खून उस 13 साला कासिम की रगों में दौड़ रहा था कि जिसको दुनिया इंसानियत ने करबला के फातिहीन में शुमार किया है। 13 साल में बड़े बड़े सुरमाओं को जिस नौजवान ने ज़ेर किया था, उस नौजवान कासिम के वालिद मोहतरम का नाम हसन इब्न अली है। लेकिन हसन की जंगों में जो फतह है, हसन इब्न अली जंग सिफ़ीन में भी रहे हैं, और आप जानते हैं जंग सिफ़ीन में कल्ब लश्कर तक हसन हमला करते करते पहुंच गए थे, और हसनैन जब जंग सिफ़ीन में फतह का परचम लहराते हुए आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने ये कह के वापस बुलवाया था इन शहजादों को, ये नबी के नवासे हैं, नबी की नस्ल इनसे चलनी है, इनको वापस बुला लो, अब इनसे कह दो कि जौहर शजात दिखा चुके। यानी उस वक्त तक हसन अपना जौहर शजात दिखा रहे थे जब तक अली के जरिए इनको वापस नहीं बुलाया गया। तो हसन ने तो बहुत सी जंगों में अपनी जंगी हुनर नुमाई की है, मगर हसन की जिंदगी की सबसे बड़ी जो फतह है वो सुलह का मैदान है, मैदान मदाइन है, जहां हसन ने कलम चला करके, अभी आप लोगों ने ये बात बार बार कही, अपनी शायरी में इस चीज को नज्म किया कि हसन ने कलम उस तरीके से जैसे खंजर चलाया जाता है, नोके कलम से हुसैन ने हसन ने वो काम किया है, हसन ने वो काम किया है जो खंजर से किया जाता है, जो शमशीरों से किया जाता है। क्योंकि नज्म की गुफ्तगू चल रही थी मुसलसल, मुझे याद आ गए अपने 4 मिसरे, तो आपके हवाले करना चाहता हूँ। मैं वो 4 मिसरे कि जो इसी सिलसिले को बयान करने के लिए मैंने कहे थे, चाहता हूं आपसे शेयर कर दूं कि ज़िया इल्म में कुछ तन्हा दम नहीं होता, ज़िया इल्म में कुछ तन्हा दम नहीं होता, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता। बता रहा है ये रुश्दी के कत्ल का फतवा, कलम का वार भी खंजर से कम नहीं होता, कलम का वार भी खंजर से कम नहीं होता। अब मैं सुलह हसनी के उस अहम तरीन रुख की तरफ आ जाता हूँ। शेख राजी आले यासीन ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के सिलसिले में बड़ी किताब लिखी है, 1200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब है जिसे सुलह हसन के नाम से जाना जाता है। सुलह हसन में शेख राजी आले यासीन ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के 8 असबाब तहरीर किए हैं और उसकी 7 शर्तें तहरीर की हैं। मैं तफसील से तो नहीं बयान कर सकता हूं, कम से कम एक मजलिस का वक्त तो पूरा चाहिए, और एक तकरीर का जो वक्त होता है इन महफिलों में उसमें से भी तकरीबन आधा वक्त मैं ले चुका हूं, तफसील नहीं बयान कर सकता। लेकिन फेहरिस्तवार मैं तोहफे के तौर पे आपकी खिदमत में उन 8 असबाब को बयान करना चाहता हूं और 7 शर्तों को बयान करना चाहता हूं कि जो सुलह इमाम हसन के मुतालिक है। पहले सबसे 8 असबाब, किन रीजंस, किन असबाब और किन वजहों और किन इल्लतों की वजह बुनियाद पर इमाम हसन ने सुलह की थी, शेख राजी आले यासीन तहरीर करते हैं। पहली वजह लश्कर की थकान है। मैं एक तहकीकी चैप्टर है जो आपके हवाले कर रहा हूं बहुत खुलासा करते हुए। लश्कर की थकान, क्योंकि ये मतलब जो मैं पहले हिस्से में पेश कर रहा हूं, मुझे याद है मैंने उन मुखातबीन के सामने जो अक्सर मुझे सुना करते हैं उनके सामने भी मैंने ये मैटर पेश नहीं किया था, इसका दूसरा हिस्सा पेश किया था, उसकी भी कुछ बातें बयान की थी। पहला हिस्सा ये है सुलह हसन के असबाब। पहला सबब इसमें क्या है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लश्कर जो था वो थका हुआ था। जंग सिफ़ीन, जंग नहरबान, जंग जमल जैसी बहुत थका देने वाली 3 जंगें तो बड़ी जंगें थी। उसके अलावा कुछ और छोटी और बड़ी जंगें ऐसी थी कि जिसमें लश्कर अमीरुल मोमिनीन के साथ था। अब इमाम हसन को जो लश्कर मिला है वो मुसलसल जंगों का थका हुआ लश्कर था। उस थके हुए लश्कर को इमाम हसन बार बार उभार रहे थे जंग करने के लिए, मगर उसका हौसला बुलंद नहीं हो पा रहा था। ये एक सबब था सुलह करने का। दूसरा सबब क्या है? लश्कर की बेवफाई। लश्कर जो था ना, उसने बेवफाई इमाम हसन के साथ की है। लश्कर वालों ने खुतूत मुआविया तक लिख के भेजे थे कि आप जंग कीजिए, जंग की सूरत में हम हसन इब्न अली को गिरफ्तार कर हवाले कर देंगे।
वो खतूत इमाम हसन के पास मुआविया ने भिजवा दिया था कि आप किन सिपाहियों के भरोसे जंग करने के लिए मैदान में आ गए हैं, ये लोग तो वो हैं कि जो गिरफ्तार करके आपको हमारे हवाले करना चाहते हैं। तीसरी वजह, तीसरा सबब जो सुलह को कबूल करने का है, वो है लश्कर का मुतजाद अनासिर पर मुश्तमिल होना। यानी बहुत तवज्जो सुनिएगा, मैं तसलसल से लगातार गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बीच में ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, और आपकी आवाजें जो तशवीक और तरगीब के लिए होती हैं, उसको सुनने के लिए मैं अपनी गुफ्तगू को बीच में रोक नहीं रहा हूँ, तसलसल से गुफ्तगू कर रहा हूँ। बस एक एक लम्हा आपकी तवज्जो उसी तरीके से चाहता हूँ जिस तरीके से मेरे सामने जो लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनकी निगाहों से मैं उनकी तवज्जो को महसूस कर रहा हूँ। देखिएगा, तीसरा सबब है लश्कर की थकान, लश्कर का मुतजाद अनासिर पर मुश्तमिल होना। यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जो लश्कर मिला था, ऐसा नहीं है कि उस लश्कर में सारे अफराद वो थे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इमाम मान करके इमाम के साथ शामिल हुए थे, बल्कि उसमें कई तरह के लोग थे। कुछ वो थे कि जो माले गनीमत की लालच में आए थे, उनको पता था अली इब्न अबी तालिब हर जंग में फतहयाब होते थे, उनका नुमाइंदा है, ये भी फतहयाब होगा, जब जंग जीतेगा तो फिर हम माले गनीमत के हकदार बन जाएंगे, माले गनीमत के लालच में आए थे। कुछ अफराद वो थे जो इमाम हसन के लश्कर में बुग़्ज़ मुआविया में आए थे, हसन को इमाम नहीं मानते थे, मगर मुआविया से नफरत थी। और खवारिज का एक बहुत बड़ा तबका था जो इसमें शामिल था। ये खवारिज बड़े खतरनाक थे, ये वो लोग थे कि जो लश्कर अमीरुल मोमिनीन में शामिल थे जंग सिफ़ीन में। लेकिन जब अमर आस ने कुरान को नेज़े पे बुलंद करवाया है, तो यही लोग अली के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो गए थे और ये कह रहे थे हम कुरान के मुकाबले में जंग नहीं करेंगे, इनको वापस बुला लो। ये नहरवान में आने वाले खवारिज बड़े खतरनाक रहे हैं, ये खवारिज के ही बाकी मानदा अफराद हैं, उन्हीं की नस्ल है जो हमारे जमाने में कभी दाइश और ISIS, कभी अलकायदा और कभी तालिबान जैसे खतरनाक इस्लामी गिरोह की शक्ल में जाहिर होती रहती है। ये वो गिरोह हैं, ये खवारिज थे जो बहुत खतरनाक थे, ये इमाम हसन के लश्कर में शामिल थे जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता था, और ये लोग बुग़्ज़ मुआविया में हसन के लश्कर में शामिल हो गए थे। बहुत से लोग तासुबाती कबाइली की बुनियाद पर आए थे, क्योंकि कबीले का सरदार इमाम हसन के साथ था, लिहाजा कबीले के सरदार का साथ देने के लिए ये लोग आ गए थे। आपको पता है कि ज़माने जाहिलियत में और अरब इब्तिदाई में सदर इस्लाम में कबाइली सिस्टम बहुत ज्यादा हावी था, लिहाजा ये लोग इस तरीके से इमाम हसन के साथ आ गए थे। तो ये और भी अनासिर थे जो इसमें पाए जाते थे। तो मैं शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, इमाम हसन के साथ जो 12 से लेकर 16,000 तक की तादाद लश्कर की बताई जाती है, ये 16,000 वो थे कि जो इमाम हसन के साथ तो थे मगर इमाम हसन के साथी न थे। तवज्जो चाहता हूँ, एक एक लम्हा, इमाम हसन के साथ तो थे मगर इमाम हसन के साथी न थे। और इसी तरीके से चौथा सबब जो है वो है लश्कर के सरदारों की बेवफाई। एक तरफ कैस इब्न सईद जो इमाम हसन के 16,000 के लश्कर में से 4,000 के लश्कर का कमांडर था, उस टुकड़ी का सरबराह था जो 4,000 अफराद पर मुश्तमिल है। कैस इब्न सईद ने मुआविया के साथ मिलकर के लश्कर हसनी में यह अफवाह फैला दी थी कि इमाम हसन ने मुआविया से अमीर शाम से सुलह कर ली है। अब जब उन्होंने सुलह कर ली है तो तुम बिला वजह बीच में कूद रहे हो, मारे जाओगे, पसपा होगे। लिहाजा हसन के लश्कर का जो माहौल था वो मुतज़लज़िल हो गया था, मुतज़ब्ज़ुब में आ गए थे। वो एतमाद जो जंग के लिए होना चाहिए, हौसला जो होना चाहिए, वो खत्म होता जा रहा था। और इसी तरीके से दूसरा कमांडर जो इमाम हसन के लश्कर का था, उसका नाम, तारीख का निचोड़ पेश कर रहा हूँ अजीजों, कई घंटों तक की जाने वाली गुफ्तगू को मैं आधे घंटे के अंदर समेट रहा हूँ। ये उस वक्त मुमकिन है जब आपकी एक एक सेकंड, जैसे अभी तवज्जो चल रही है, हमारे साथ चलेगी। दूसरा कमांडर जो था उसका नाम उबैदुल्लाह इब्न अब्बास था। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भाई था, रसूल के और अमीरुल मोमिनीन के चचा थे, जिनका नाम था अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के दो बेटे तारीख इस्लाम में बहुत मशहूर हुए हैं। एक जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, जिन्हें इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, मौलाए कायनात के शागिर्द थे, सबसे पहले मुफस्सिर कुरान जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास। ये नेक इंसान थे। और दूसरा उनका भाई था जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्न अब्बास। उबैदुल्लाह इब्न अब्बास भी उस वक्त तक तो सही चल रहा था, इसीलिए लश्कर इमाम हसन का कमांडर भी था, मगर इमाम हसन के साथ उसने मदाइन में गद्दारी की, बेवफाई की। और 8,000 पर मुश्तमिल जो टुकड़ी थी, लश्कर की सबसे बड़ी टुकड़ी, उस 8,000 अफराद को लेकर के रातों रात
10 लाख दिरहम के बदले में मुआविया से जाके मिला, मुआविया से जा मिला, 10 लाख दिरहम में मुआविया ने उसको खरीद लिया और उसने इमाम हसन के साथ बेवफाई की। अब लश्कर में से जो 16,000 का लश्कर था, उसमें से 12,000 का लश्कर इमाम हसन से अलग हो चुका था, और जो 4,000 अफराद बचे थे वो किस आलम में थे वो मैं पेश कर चुका हूँ। ये सरदारे लश्कर की बेवफाई थी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इमाम हसन के जो मकासिद थे, इमाम हसन का जो सबब था, असबाब जो थे सुल्ह करने के और सुल्ह को कबूल करने के, उन असबाब में से एक सबब शियों की हिफाजत थी। याद रखिएगा, इमाम हसन जंगे मदाइन को सुल्ह में तब्दील करने के बाद फरमाते हैं, अगर उन हालात में जो हालात बन चुके थे, अगर मैं सुल्ह न करता तो मेरे शियों का बचना मुमकिन न था, शियों का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन हो जाता। इसको बाद में पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे जद इमाम हसन सुलह न करते मैदान मदाइन में, तो रूए जमीन से शियों का खात्मा हो जाता। अब इसकी दलीलें, इसकी वजूहात बहुत सी हैं, मैं इसको आज एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मगर इसको ध्यान में रखिएगा कि पांचवें इमाम ने फरमाया है कि इमाम हसन ने सुलह की थी शियत की बका के लिए, शियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शियों की हिफाजत के लिए। इसी तरीके से एक सबब था मसलहत इस्लामी की इक़्तिज़ा, यानी इमाम हसन चाहते थे असल इस्लाम महफूज रहे, क्योंकि अमीर शाम अगर शाम से लश्कर लेके जो आया था जंग के मैदान में और मदाइन में जो कूफे के करीब है, यहाँ आकर के लड़ाई कर रहा था। देखिए हजरत अली ने जो जंग की थी, जंग सिफ़ीन, उसके हालात कुछ और थे, ये जंग जो होती इसके हालात कुछ और होते। जंग सिफ़ीन शहर दमिश्क के जंग सिफ़ीन जो है शाम के एक शहर में हुई थी, जिसे रक्का कहते हैं, जहाँ जनाब अम्मार यासिर और जनाब उवैस करनी की कब्र मौजूद है, उनका मज़ार मौजूद है। शाम में जंग हो रही थी, शाम का लश्कर यहाँ नहीं आया था, शाम खाली नहीं हुआ था, यहाँ का लश्कर वहां गया था, कूफे का लश्कर गया था। लेकिन जंगे मदाइन जो हो रही थी, उस जंगे मदाइन में, मदाइन शहर कूफे के पास है, वहां शाम का 1 लाख का लश्कर आया था। अब शाम के लश्कर की पूरी ताकत शाम को छोड़ करके इराक आ चुकी थी, क्योंकि एक जंग हार चुका था जंग सिफ़ीन मुआविया, अब हसन से जंग हारना नहीं चाहता था, लिहाजा अपनी पूरी ताकत को समेट करके 1 लाख अफराद को मुश्तमिल करके इमाम हसन से लड़ने के लिए भेजा था। अब आप महसूस कीजिएगा, अगर वो लश्कर यहाँ आ जाता और वो लश्कर इमाम हसन से जंग में मशगूल हो जाता, तो पीछे से रूम जो मुसलसल इस्लाम के खिलाफ लगा हुआ था, रूम की ताकत लगी हुई थी कि इस्लाम को पसपा कर दिया जाए। अब वो लश्कर लेकर के आता और शाम पे हमला करता, नतीजा ये होता, इधर मुसलमान आपस में टकरा रहे हैं, उधर तबूक के रास्ते शाम में लश्कर रोम दाखिल हो रहा था, रोम का और इटली का लश्कर अब वहां आ चुका था। अब ऐसे मौके पे असले इस्लाम को खतरा था, मुसलमानों का कत्लो खून होता, गारतगरी होती। ऐसे माहौल में हसन इब्न अली को असले इस्लाम को बचाना था, लिहाजा सुलह की थी। इसकी एक दलील ये भी है कि जब अमीर शाम वापस गया है मदाइन से, कहाँ वापस गया है, एक इल्मी बात आपके हवाले कर रहा हूँ, इल्मी और तहकीकी मैटर आपके हवाले कर रहा हूँ। जब शाम वापस गया है तो उसने देखा कि शाम की दीवार यानी शहर तबूक तक लश्कर रूम आ चुका था, जो इस इंतजार में था कि इधर हसन और मुआविया की जंग हो, उधर हमला कर दिया जाए शहर इस्लामी पर, मुल्क इस्लामी पर। यही वजह है कि अब चूंकि मुआविया रोम के लश्कर से जंग करने के लायक न था, लिहाजा उसने 10 लाख से ज्यादा दिरहम देने के बाद, दिनार देने के बाद, यानी शिकस्त को एक तरीके से कबूल करते हुए दब करके सुलह की है। और जब सुलह हुई है लश्कर रूम से, तो वो लश्कर रूम वापस गया है, जो पैसा अमीर शाम ने उसको अता किया है, उसको दिया है। ये एक बहुत बड़ा सबब था जिसकी वजह से इमाम हसन ने सुलह फरमाई थी। आप सबकी तवज्जो का बेइंतहा शुक्रगुजार हूं इस सिलसिले में। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आखिरी सबब क्या था? अमीर शाम की साजिश को नाकाम कर देना। क्योंकि आपने बड़ी तवज्जो से हमारी गुफ्तगू समाअत फरमाई, लिहाजा अब इसके बाद मैं, वक्त ज्यादा हो गया है, मैं इस गुफ्तगू को मजीद आगे नहीं ले जाऊंगा। शर्तें जो 7 शर्तें हैं उसको कभी और आपके हवाले करूंगा। सिर्फ एक शर्त उसमें से बयान करते हुए अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक शर्त के पहले मैं आखिरी सबब बयान कर रहा हूं कि इमाम हसन ने किस बुनियाद पर सुलह की थी, और इस सबब को जो तारीख को पढ़ने के बाद खंगाल के निचोड़ के तौर पे आपके हवाले कर रहा हूं। मुझे यकीन है आप जब भी इसको सुनेंगे और सोचेंगे तो महजूज होंगे और मुझे दुआए खैर में याद करेंगे। पूरी तारीख का मैदान मदाइन से लेके
کربلا کے میدان، کوفے کے بازار سے لے کر کے شام کے دربار تک کی پوری ایک تاریخ کا، بلکہ یہ کہہ دوں مکے سے لے کے مدائن سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک کی پوری تاریخ کا نچوڑ 1 منٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام حسن نے کیوں صلح کی تھی معاویہ ابن ابی سفیان سے؟ اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ جب مکے میں پیغمبر اکرم اپنا لشکر لے کر کے وارد ہوئے تھے اور مکہ بغیر خوریزی کے فتح ہو گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپنے لگے تھے، بہت معذرت چاہتا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم نے کے سامنے جو قیدی اور اسیر بنا کر کے لائے گئے تھے، جو ہمیشہ نبی سے اور خاندان نبوی سے جنگ کے لیے آمادہ رہا کرتے تھے، وہ جب افراد نبی کے سامنے لائے گئے ہیں، ان میں خاندان بنی امیہ پورے کا پورا موجود تھا۔ اس خاندان بنی امیہ میں عزیزوں یہ معاویہ ابن ابی سفیان بھی موجود تھا، اس کے گھر والے موجود تھے۔ یہ پورا خاندان بنی امیہ جب اسیر کر کے نبی کے پاس لایا گیا ہے، نبی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے آج تو ہم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں، ان سب کا قتل عام کر دیا جائے گا، انہوں نے ہم کو بڑی اذیتیں کی ہیں، ہم کو مکے سے باہر نکالا ہے، ہمارے اوپر کوڑا پھینکا ہے، ہمارے اوپر تلواروں سے حملہ کیا ہے، جنگ بدر کرنے آئے، جنگ احد لڑنے آئے، نہ جانے کتنی جنگ ان سبوں نے کی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو دشمن تھا نبی کا وہ خاندان بنی امیہ تھا، ابو سفیان ان کا کمانڈر تھا اور ان کا سربراہ تھا، جو معاویہ کا باپ تھا، یزید کا دادا تھا، عزیزو ہندا جگر خارا کا شوہر تھا۔ اب یہ پورا خاندان جب گرفتار کر کے نبی کے سامنے لایا گیا ہے، جس نے مسلسل نبی کو اور خاندان نبی کو مسلمانوں کو اذیت کی ہے، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خاندان تو ابھی تیز کر دیا جائے گا، مگر رحمت للعالمین پیغمبر اکرم نے جب خود اقتدار میں، جب خود پاور میں آئے تو مکے میں داخل ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، ان سارے قیدیوں پہ نظر ڈالنے کے بعد یہ آواز دی، انتم الطلقاء، تم سب کے سب میرے آزاد کردہ ہو۔ یاد رہے جنگ میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں جو لوگ، وہ غلام بن جاتے ہیں، یہ پہلے کی تاریخ تھی، عورتیں گرفتار ہوتی تھی تو کنیز ہو جاتی تھی، لیکن ایسے غلاموں کو اگر ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا جاتا تھا تو انہیں طلقاء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ نبی نے ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے، منت کرتے ہوئے یہ فرمایا، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، گویا غلام ایسے ہو جن کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، معاویہ ابن ابو سفیان یزید جیسا بیوقوف نہ تھا، یزید جیسا، معاویہ مکار بہت تھا، سیاس بہت تھا، مگر یزید جیسا احمق نہ تھا۔ لہذا قتل فرزند پیغمبر کا دھبا اپنے دامن پہ لینا نہیں چاہتا تھا، چونکہ اپنے کو صحابی رسول کہلواتا تھا، کاتب وحی الہی لکھواتا تھا۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ قتل سبت پیغمبر کا دھبا اس کے دامن پہ آ جائے۔ اس کا پلان کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ صلح نامہ اس لیے بھیج دیا تھا کہ صلح اگر حسن قبول نہیں کرتے ہیں تو ہم دنیا سے کہہ سکیں گے ہم نے فرزند رسول سے صلح کی بھیک مانگی تھی، مگر وہ خود تیار نہ ہوئے، اور اگر صلح قبول کر لیتے ہیں تب بھی ہماری بات رہ جائے گی۔ ان دونوں مقصدوں کے تحت صلح نامہ بھیجا تھا، لیکن حسن ابن علی کے سامنے دو راستہ تھا، یا صلح کو قبول کرتے یا جنگ کرتے، اور تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے جنگ نہ کر کے صلح کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جنگ ہوتی نا تو امیر شام امام حسن کو گرفتار نہیں کرتا، بلکہ امام حسن کو قتل نہیں کرتا بلکہ گرفتار کر کے لے آتا، اور جب گرفتار کر کے امام حسن کو لایا جاتا سامنے نا تو امام حسن کو وہ آزاد کر دیتا، امام حسن کو آزاد کر کے اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کرتا کہ جو احسان حسن کے باپ نے اور حسن کے جد نے معاویہ اور خاندان بنی امیہ پر کیا تھا۔ عزیزان گرامی، اب اس طریقے سے امیر شام اور خاندان امیہ کے دامن پہ جو طلقاء کا دھبا لگا ہوا تھا وہ دھبا مٹ جاتا، اس لیے کہ جیسے وہ گرفتار کر کے آزاد کیا گیا تھا ویسے حسن بھی گرفتار کر کے آزاد کر دیے جاتے۔ حسن ابن علی نے صلح کو قبول کر کے امیر شام کی سازش کو ناکام کر دیا، اور پھر زینب کبریٰ کو یہ موقع دے دیا کہ دربار شام میں حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یزید سے یہ کہا، انتم یبن الطلقاء، اے میرے بابا کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تیری کیا مجال جو مجھ سے ہم کلام ہو سکے۔ یہ ہے منزل، یہ سارے اسباب تھے، وقت ختم ہو گیا، لہذا شرطوں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک شرط۔ شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ سب کی توجہ کا اور انہماک کا، میں مشکور ہوں۔ آخری بات، ایک شرط صرف عرض کر رہا ہوں، باقی شرطیں کبھی اور۔ جو شرطیں امام حسن نے لکھی تھی نا، یہ کاغذ جس پہ شرط لکھی گئی تھی، اس کو بنی امیہ کے لیے
इमाम हसन ने बनु उमय्या के ताबूत के लिए, बनु उमय्या के जनाजे के लिए कफन बना दिया था। और ऐसा वजनी कागज है ये सुलहनामे का, जिसके वजन से आज तक खानदान बनु उमय्या दबा हुआ है और अपने को उभार नहीं पा रहा है, इससे निकाल नहीं पा रहा है। उन शर्तों में से एक शर्त ये थी कि हुकूमत मुआविया के हवाले इसलिए की जाती है, इस शर्त पे भी की जाती है कि अगर अभी तो हुकूमत मुआविया को दी जा रही है, लेकिन अगर मुआविया के बाद मुआविया को वली अहद बनाने का, अपना नुमाइंदा बनाने का, अपना जानशीन बनाने का हक नहीं है। अगर मुआविया के बाद हसन जिंदा रहे तो हुकूमत हसन का हक होगी, और अगर हसन दुनिया में न रहे तो इस हुकूमत के हकदार हुसैन होंगे। और उस शर्त पर, उस अहदनामे पर अमीर शाम ने दस्तखत भी की है। ये दस्तखत अमीर शाम की हुई फरीकैन की किताबों में आज तक मौजूद है कि अमीर शाम ने हसन के जरिए लिखी गई सारी शर्तों को कबूल किया था। आप जानते हैं किस तरीके से हसन ने जमीना साजी की है जंगे करबला के लिए, ये कह करके कि देखो तुम्हें हक नहीं है कि अपने बाद किसी को अपना नुमाइंदा मुअय्यन करो, हुकूमत का हक या हसन को है या हुसैन को है। अब उसके बाद भी अगर यजीद को अपना वली अहद मुआविया बनाता है तो अपने ही जरिए की गई और कबूल की गई शर्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अब अगर यजीद के खिलाफ हुसैन कयाम करते हैं तो हुसैन के कयाम को बागी का कयाम नहीं कहा जाएगा, बल्कि अपने उस हक के लिए मुतालिबे के उन्वान से खड़े होने किससे ताबीर किया जाएगा जो हसन का मुसल्लमा हक है, जिसे जो हुसैन का मुसल्लमा हक है, जिसे हसन की लिखी गई तहरीर के बाद यजीद के बाप ने खुद कबूल किया था। तो गोया हसन ने जो शर्त लिखी है वो जमीना साज जंगे करबला है। गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूं, बहुत अच्छे अंदाज से नज्म का सिलसिला चल रहा था, नज्म के बाद नसर समातों पे बार होती है, और अब उस बार से आपको निकालते हुए अगर बार बनी होगी मेरे समाज तो मैं नज्म पे ही गुफ्तगू को मुकम्मल कर देता हूँ कि ये सुलह हसनी जमीना साज जंगे करबला है। मशहूर और मारूफ शायर हिंदुस्तान जनाबे नजीर बाकरी कहते हैं कि जब उजाला उफुक खून से बाहर निकला, जब उजाला उफुक खून से बाहर निकला, हम जहां चांद समझते थे वहां सर निकला। जब उजाला उफुक खून से बाहर निकला, हम जहां चांद समझते थे वहां सर निकला, हम जहां चांद समझते थे वहां सर निकला। और जब मेरी सुल्ह पलट आई मेरे घर मायूस, फिर देखिएगा, जब मेरी सुल्ह पलट आई मेरे घर मायूस, मारे का तब मेरे दरवाजे से बाहर निकला, मारे का तब मेरे दरवाजे से बाहर निकला। इस सिलसिले का एक शेर, इस सिलसिले का एक, शुक्रिया आप लोगों का। अब जब मैंने शेर पढ़ दिया है तो इसी सिलसिले का दो शेर और पेश कर देता हूँ। एक मतला इसी का हिस्सा है, एक मतला और एक शेर, लुत्फ आएगा आपको। भाई के साथ भाई का तस्करा बहुत से लोगों ने किया, मैं भी भाई के साथ भाई का तस्करा कर दूं। जब मेरी सुल्ह पलट आई मेरे घर मायूस, मारे का तब मेरे दरवाजे से बाहर निकला। और जो मुसाफिर गम शब्बीर से बचकर निकला, जो मुसाफिर गम शब्बीर से बचकर निकला, जिल्लतें दरबदरी उसका मुकद्दर निकला, जिल्लतें दरबदरी उसका मुकद्दर निकला। जो मुसाफिर गम शब्बीर से बचकर निकला, जिल्लतें दरबदरी उसका मुकद्दर निकला। मस्जिदों में तो मिले सैकड़ों सजदे, लेकिन मस्जिदों में तो मिले सैकड़ों सजदे, लेकिन कत्लगाहों में फकत सजदा सरवर निकला। आलम तुझे वास्ता है इमाम हसन की ज़ात अक़दस का, हम सब के तरफ से इन अमाल को कबूल फरमा ले। परवरदिगार, यकीनन हमारी तरफ से कोताहियां होती हैं, लेकिन आमालुना कलीला व हाजातुना कसीरा। हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमारे अमाल बहुत कम हैं, हाजतें कसीर हैं। उसी का हिस्सा ये भी है कि हमने अमल कलील अंजाम दिया है, और हाजात कसीरा में से एक अहम हाजत ये है कि परवरदिगार कलील अमल को कसीर समझ के कबूल फरमा ले। यकीनन हमसे कोताहियां हैं, कोताहियां हुई हैं, हम यकीनन उस तरीके से अमाल नहीं अंजाम दे पाते जो हक है, लेकिन तू करीम है परवरदिगार, करीम से सिवाय करम की तवक्को कुछ भी नहीं। परवरदिगार तू गफूर है, गफूर से क्या तवक्को हो सकती है सिवाय मग़फ़िरत के। तू रहमान और रहीम है, रहीम से क्या उम्मीद हो सकती है सिवाय रहमत के। परवरदिगार आलम, हमारा हिसाब
اپنے عدل کی بنیاد پہ نہ کرنا بلکہ اپنے فضل کی بنیاد پہ کرنا. الہی تعاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پروردگار اس جشن کے انعقاد میں جو لوگ جس طریقے سے شریک رہے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے جو اہم ارکان ہیں ان کا میں نام نہ لے پاؤں، ان کا ذکر نہ کر پاؤں، مگر پروردگار تو جانتا ہے ان سب کو ان لوگوں کے ساتھ جزائے خیر دینا. اکبر بھائی ہیں جو میزبانوں میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے وطن سے جو حضرات جڑے ہیں، ناظم صاحب ہیں، شعراء کرام ہیں، بالخصوص وہ سامعین کہ جو اس جشن میں شریک ہو کر کے اپنی نیتوں کی بنیاد پر اپنے گھر کو فرش عزا بنانے میں کامیاب ہو گئے، فرش محفل بنانے میں کامیاب ہو گئے. آپ نے جن لوگوں نے بھی یہاں ہم لوگوں کو سنا ہے، شعراء کو اور خطیب کو سنا، ان سب لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. فرش عزا میں نہیں بچھی، فرش محفل نہیں بچھا، مگر آپ نے اپنے گھر کو اور اپنی نشست گاہ کو فرش عزا بنا دیا ہے، فرش محفل بنا دیا ہے. پروردگار ان سب کی طرف سے اس عمل کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ خوب ماشاء اللہ بہت عمدہ تقریر، ماشاء اللہ بہت عمدہ تقریر.